Good evening, everyone. Good Good evening, sir. Good evening, sir. evening. Good कैसे हैं आप evening, लोग? sir. How is everyone? I'm fine, sir. How are you? Good I'm good. evening, I'm sir. good. Any new students have joined today? I think I can see a new face. Ye- Rahul. Yes, sir. Good evening, sir. Myself, Good Rahul evening. Verma. Just give a brief introduction about yourself so that others may know about you as well. So myself, Rahul Verma, and I belong from Assam. Be And be I, be be a little loud. We can't. I can't hear you properly. I think. hello. Yeah, yeah. Please go ahead. So myself, Rahul Verma, and I belong from Assam. Assam. And I, Okay. Which part of Assam? eastern side, Which district? Tinsukia district, sir. Okay, okay. ऊपर आप बिल्कुल डिब्रूगढ़ तिनसुकिया नॉर्थ असम. Yes, sir. Yes, ठीक. sir. Wonderful. And I completed my graduation in Bachelor of Arts. कहाँ से? And कहाँ से हो? sir, दिल्ली से किया हूँ मैं. Delhi University. Okay. Yes. And और मेरा ऑप्शनल सर हिस्ट्री. sorry, हिस्ट्री. optionally history. History. Okay. And you have any prior experience in civil services? Yes, sir, I have given two attempts. Okay. No worries. It's Um, perfectly fine. Yeah. So the idea is whatever has happened has happened. Now we move on. For you're now targeting next year, 26. yes, sir. Okay. So the idea is to now, for all of you as well, others as well. Now, starting this, we are just beginning of first week of July. It is on second week we have entered already. So till the next 3 to 4 months, I think July, August, September, at max October. This is your opportunity to fine tune your strategy for mains, your optional and your GS, as well as current affairs. That should be taken care of during this period. You should prepare your current affairs also. All right. And once towards the mid of November, December, you can start with your prelims because uh, mains holds the key. Prelims gives you that license to. आपको ड्राइविंग अच्छी आती है बट आपके पास लाइसेंस नहीं है तो रोड पे गाड़ी नहीं चला पाओगे. तो जितना मेंस आपका अच्छा तैयार बेशक होगा, प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो मेंस लिख नहीं पाओगे. प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस तैयार नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. सो वी हैव टू, दिस इज जस्ट द opportune time, this is the best time to start preparing now since most of you now have some background in civil services. एक एक अटेम्प्ट सबने दिया हुआ है और थोड़ा बहुत सब लोग पढ़ के आए, पढ़ा हुआ है. सो यहाँ पे आपको ये अब कोशिश करनी है कि आप अपने स्टार्ट नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स की डेट क्या है? व्हाट इज द डेट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स प्रीलिम्स? 26th May. 26th May. So we have 5 months of next year and around 5.5, 6 months of this. So around 10 months. We have around 10 months, right? 10 to 11 months. So you should start your preparation backwards. How you want to go from your prelims preparation. आपका इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें क्या पिटफॉल्स रहे, इंट्रोस्पेक्ट ऑन दैट. गो थ्रू द प्रीवियस ईयर, जो इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम था, both GS as well as CSAT. Go through it again in between as well, so that you find out what has been your lacuna, what has been the pitfall, कहाँ पे आपकी गलती हुई. अगर आप वो गलती आइडेंटिफाई करोगे, then only you will be able to correct it and move forward with a very confidence and correct strategy. Alongside as well, जिन जिन का ऑप्शनल अभी जिसने चूज नहीं किया है वो जल्दी से चूज कर ले. जिन्होंने कर लिया है, अगले 3 से 4 महीने अपने ऑप्शनल को, आई वुड से यू शुड गिव मैक्सिमम टाइम टू योर ऑप्शनल अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस. ऑप्शनल को 50% ऑफ द टाइम आपको ऑप्शनल के पास जाना चाहिए. नेक्स्ट 2 मंथ्स जुलाई एंड अगस्त मस्ट गो ऑन रीडिंग, रीडिंग एंड गैदरिंग योर डेटा, और कहाँ से आपने पढ़ना है. और नेक्स्ट उसके बाद अगले 2 मंथ्स आपका नोट मेकिंग में जाना चाहिए. एक स्ट्रैटेजी माइंड में, पहली बार में शुरू में नोट्स बनाने में मत जाइए. जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और शुरू हो गए नोट्स बनाने, वैसे नहीं करना है. आपने कोशिश ये करनी है, पहले आपने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट का एक सिमेंटिक होता है. उस सिमेंटिक को, डिक्शनरी को जब समझोगे नहीं, इंटरनलाइज नहीं करोगे, तो आप सब कुछ नोट कर लोगे. सो यू हैव टू बी केयरफुल हेयर दैट you understand the dynamics involved in every subject, as well as
योर जीएस सब्जेक्ट्स शुड ऑल्सो बी टेकन अलोंग द वे। आपको जीएस को भी साथ में लेके चलना, एंड योर essay राइटिंग skills that also you have to strengthen. How many of you are reading newspapers daily, right? If I'm not, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सब लोग? Yes, sir. कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप लोग? विच न्यूज़पेपर? The Hindu. The द Hindu, हिंदू, sir. इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं आप। ईदर इज गुड, but make it consistent. Particularly, invest more time in analysis of the editorials. Try to read that. Try to pick up statements. Try to pick up some things that the experts do mention. पूरा आपको एडिटोरियल नहीं उठाना है, वहां से एक से दो कोई स्टेटमेंट आपको जो इंपॉर्टेंट वहां पे दिखती है, उसको आप एक अलग एक नोटबुक बनाइए, जैसे मैंने अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को भी पहले से बता रखा था जब हम प्रीलिम्स का हमने शुरू किया था। तो एक कोशिश करें, अभी आपने एक छोटी सी एक डायरी रख लीजिए, डायरी और छोटी सी नोटबुक। तो उसमें आपने क्या करना है, सेग्रीगेट कर दीजिए उसको। GS 2, 3 और 4, फोर और ऐसे सेम ही होगा, एथिक्स और ऐसे का सेम कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। जैसे GS 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड कुछ आप न्यूज पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसी टर्म या कोई ऐसी थ्योरी, जैसे महान की थ्योरी, मैकाइंडर की थ्योरी, इस तरह का कुछ अगर आपको टर्मिनोलॉजी मिलती है, बस उसको ब्रीफली मेंशन कीजिए। नॉट माई टू स्टेटमेंट, ओके, नो वरीज रुबिन, नो इश्यूज, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सो इस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स, इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। यू शुड हैव इंटरनलाइज कि मेरे को टॉपिक्स क्या है मेरे सिलेबस के। तो आप अपनी जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, उन टॉपिक्स के हिसाब से टेथर करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल, यू रीडिंग इंटरनल सिक्योरिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ अ न्यूज कम्स अबाउट द मणिपुर इशू, यू रीड व्हाट इज गिवन इन द आर्टिकल। फिर किसी एक्सपर्ट ने ऐसे कुछ आर्टिकल डिटेल में लिखा होगा, जिसमें वो हिस्टोरिकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेगा, आपको बताएगा व्हाट इज द रूट कॉज, व्हाट इज इंसर्जेंसी क्यों हुई है, व्हाट इज द कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देन there will also be mention of many expert committees, some committees, interlocutor committees, उनको आपने नोट डाउन करना है। Similarly for disaster management, environment, economics, science and technology, make short segments in your notebook. And for the essay paper, pick up stories. essay में आपको दो तीन तरीके से, जब हम विल टेक दी essay क्लास, वहां पे essay में आप दो तीन तरीके से essay की शुरुआत कर सकते हैं। People generally start with a quotation or something, or some normal, but I would advise आप थोड़ा सा अपने माइंड को इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इमेजिनेटिव माइंड बनाना है। कुछ एनेक्डोट, हिस्टोरिकल एनेक्डोट और सम इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट विल बी रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट विल। एसए में और एथिक्स में एक चीज जो बड़ी क्रिटिकल होने वाली है आपके लिए टू स्कोर गुड मार्क्स इज स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड विद द एग्जामिनर के साथ एक इमोशनल कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन इशू रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर पे या चाइल्ड अब्यूज पे या वुमेन इमेंसिपेशन पे कोई टॉपिक है, देयर यू कैनॉट राइट दैट ऐसे इन अ सिमिलर फैशन एज टू राइट यू राइट अबाउट एआई के में आप टेक्नोलॉजी कुछ लिखोगे, नॉर्मल जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, बट व्हेन यू राइट अबाउट एन इशू दैट इज इमोटिव, दैट हैज एन एलिमेंट ऑफ सम सेंसिबिलिटी देयर, वहां पे आपको उस चीज को थोड़ा इमोटिव कंटेंट भी क्रिएट करना है, along with the data reports, statistics, anecdotes, historical examples, philosophical wisdom that you include there. उसके साथ you have to build a narrative. वो narrative इस तरह से होना चाहिए कि आपका एक एग्जामिनर के साथ कॉर्ड कनेक्ट हो जाए। And similarly for other things. So I'm sure if you continue with this activity for over the period of next 3 to 4 months, you will have done a lot of good work. And when you are ready for the mains next year, you definitely qualify. ठीक है? Any doubts in yesterday's class, anyone? किसी को कुछ कोई डाउट है कल की क्लास में? कल कौन नहीं आया था? काजल, आप नहीं आए थे, आपने क्लास फॉलो कर ली थी? Yes, sir. कुछ डाउट है उसमें? No, sir. नो डाउट्स। उसके अलावा और कौन नहीं आया था कल? सुनिधि, आप नहीं आए थे? Yes, sir. फॉलो कर लिया आपने, लेक्चर देख लिया? Yes, sir. किसी को और कौन था जो नहीं आया था कल? बाकी सब आए थे। राहुल, यू हैव एनी आइडिया अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस? पढ़ा हमने पहले कुछ थोड़ा बहुत? Yes, sir. थोड़ा समझ। ठीक है, जो आपकी रिमेनिंग क्लासेस हैं
उनको Yes. कंप्लीट कर लीजिए। आशीष, आप भी जो कल के अलावा जो पुरानी क्लासेस हैं, डू फिनिश देम, है ना? Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड कर लिया आपने, गुड। एंड जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला हुआ है, डू डू कीप डूइंग विद दैट। उसको पाइल अप मत कीजिए, जितना बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, वंडरफुल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर नेबर ऑफ इंडिया, एन इंपॉर्टेंट नेबर इन इंडिया साउथ। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, सो देर आर लॉट ऑफ हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स। जब हम श्रीलंका की बात करते हैं करते हैं, तो बहुत बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें भी इस चीज से जुड़ी हुई हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट रामायण, किसने आग लगाई थी श्रीलंका में? हनुमान जी ने। सो दैट्स अ stories of mythology, and lot of historical anecdotes related to that. So we will study, mostly we will focus on what is the contemporary situation, and also किस तरह से जो एनेक्डोट हमारा अभी आगे बिल्डअप होगा, कि हमारे जो रिलेशंस हैं श्रीलंका के साथ, आगे कैसे बढ़ते हुए कैसे जाएंगे। ठीक है, so as you talked about the Ramayana Connect, so we have a long civilization history with Sri Lanka, spanning for 25,000 years. 25,000 साल की हमारी हिस्ट्री है, marked by deep cultural, religious and linguistic exchanges. ठीक है, देखिए कोई भी जोग्राफिकली कंटिगुअस एरियाज होते हैं, कंटिगुअस मतलब जुड़े हुए, तो जोग्राफिकली कंटिगुअस जो एरियाज होते हैं, इट इज बट नेचुरल कि वहां पे लोगों का आना जाना होगा। हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, जब हिस्ट्री में हमने चोला किंगडम के बारे में पढ़ा था, तो चोलाज आर द पीपल हु इनहेबिटेड दिस पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, दैट इज क्लोजेस्ट टू श्रीलंकन्स, है ना? श्रीलंकन, आई वुड से इट इज एन आइलैंड, इट इज एन आइलैंड कंट्री, ठीक, टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया। तो इट इज वेरी नेचुरल टू हैव पीपल टू पीपल कनेक्ट, दैट इज द कल्चरल रिलीजियस कॉन्टैक्ट होता है, बुद्धिज्म का इम्पैक्ट रहा है काफी वहां पे, और ऑब्वियसली देर इज सिमिलैरिटी। अब एक जो मेजर इशू जो इंडिया और श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में आता है, वो आता है विद रिस्पेक्ट टू द तमिल्स। ठीक है, तमिल्स आर अ माइनॉरिटी इन श्रीलंका, एंड देन देर इज अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन, द सिन्हालीज पीपल, द सिन्हालीज। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकली किसको ज्यादा राइट्स मिलेंगे, क्या चीजें होंगी इसके कॉन्टेक्स्ट में, देयर वाज दिस 13 अमेंडमेंट आल्सो, 13th अमेंडमेंट in Sri Lankan constitution, which talks about कि giving more rights, more rights and representation to the Tamilians। ठीक है, और जब ये 13 अमेंडमेंट 1987, इट वाज अराउंड 1987 व्हेन दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ था, जो सिन्हालीज लोग थे, उन्होंने इस चीज को प्रोटेस्ट भी किया था, बिकॉज उनको लगा कि ये हमारे राइट्स, हमारे हकों को, दे काइंड ऑफ ये टेकिंग अवे आवर राइट्स। और इंडिया ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था। और एक और चीज आप समझिए यहाँ पे, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, इंडियाज श्रीलंकन पॉलिसी इज टेथर्ड बाय द पॉलिटिकल ओपिनियन इन तमिलनाडु। आपने देखा होगा कि जो भी हमारी पॉलिसी है श्रीलंका की तरफ, उसमें तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब भी हम कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं वहां पे, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, एलटीटी का काफी वहां पे वो रोल रहा है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, प्रभाकरन एंड ऑल ऑफ दोस पीपल देयर, इफ यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया। तो इंडिया ने एक राजीव गांधी जी के टाइम पे पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी वहां पे, आईपीकेएफ, है ना? तो उसको एक अच्छे से नहीं लिया गया, दैट वाज नॉट वेरी वेल रिसीव्ड इन श्रीलंका। श्रीलंका में उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया गया। उस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में फिर वो जो एलटीटी वाले लोग थे, उन्होंने किस तरह से राजीव गांधी जी की असैसिनेशन भी करवाई, तो वो सारी चीज़ें आपको हिस्टोरिकली आपने पढ़ी हैं। ठीक है, सो दिस इनफैक्ट ये स्टेटमेंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में। जो श्रीलंका के पीएम रहे हैं,
महिंदा राजापक्सा, उन्होंने क्या कहा है, इंडिया इज अ रिलेटिव ऑफ श्रीलंका while all other countries are friends. So this can be used. This statement can be used. While India is a relative of Sri Lanka, all other countries are friends. So this can be taken note of. ठीक है? This unique bond has shaped close political, economic, and people-to-people ties between two countries. So this is a brief. इसमें से आप कंप्रेस करके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने जो भी आपका आप मेंस में आंसर लिखोगे, या अगर आपका यूपीएससी में ऐसे में भी जियो पॉलिटिक्स पे कुछ ऐसे लिखते हो, आप इसमें से एक एनेक्डोट ले सकते हो. यू कैन पिक अप एन एनेक्डोट फ्रॉम हियर. ठीक है. नाउ लेट्स गो बैक टू द हिस्टोरिकल थिंग्स, हाउ इट शेप्ड आउट. इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया श्रीलंका को आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948. वी रिकॉग्नाइज श्रीलंका. 1664 में Shirima, Shiririma and Shastri pact on Tamils. This happened. Then 1987 में दिस आईपीकेएफ भेजा जो इंडिया ने. ठीक है. और 1990 में आईपीकेएफ को विड्रॉ किया गया बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ इंडिया. इंडिया का ये ना एक एक फेल्ड ऑपरेशन था. आईपीकेएफ फेल्ड ऑपरेशन मींस इट वाज नॉट वेल थॉट आउट. इट वाज नॉट टेकन वेरी वेल. और एक बार इंडियन फोर्सेस वहां पे घुस गई तो उनके लिए फिर वहां से बहुत ज्यादा एट्रिशन हुआ इंडियन फोर्सेस का. इंडियन फोर्सेस के लिए वहां पे उस टोपोग्राफी में, उस ज्योग्राफी में फाइट करना बहुत आसान नहीं था. तो दैट वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस. 2009 में सिविल वॉर हुई एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड. फिर जो क्राइसिस हुआ था श्रीलंका का, हमने बहुत ज्यादा उनको हेल्प किया उसमें. वी गिव देम, यू अंडरस्टैंड, व्हेन डेट डेट क्राइसिस हुआ था, एफडीआई पूरा फ्लाइट हो गया, वो ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो गए थे फ्रॉम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. फिर उनका जो एफडीआई पूरा क्रैश कर गया. मेजोरिटी ऑफ उनकी जो इकोनॉमी एफडीआई पे फोकस थी. तो बहुत सारी चीजें वो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ. ठीक है. एक और चीज जो इसमें एक मिसिंग है, 1974 में देयर इज एन इंपॉर्टेंट इशू. जब भी श्रीलंका और इंडिया की बात आती है, कच्चातीवू आइलैंड का रेफरेंस हमेशा उसमें आना चाहिए. द रेफरेंस ऑफ कच्चातीवू आइलैंड. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट? कच्चातीवू इशू. Anyone is aware of this Kachatibu issue? Yes, sir. Yes, Can sir. anyone can anyone tell me briefly क्या है Kachatibu issue? जल्दी से. तो So कच्छातीवू both, आइलैंड बोथ श्रीलंका एंड हाँ इंडिया का क्लेम हाँ करते हैं. हाँ. फिर प्लीज स्टार्ट अगेन. क्या बोल रहे हैं आप? सर कच्छातीवू आइलैंड पे बोथ इंडिया एंड श्रीलंका दोनों अपना क्लेम करते हैं, जिसकी वजह से फिशरमैन्स जब वहां पे फिशिंग के लिए जाते हैं तो इंडियन फिशरमैन्स की भी डेथ हो जाती है. एंड जब श्रीलंकन्स दे कम हियर तो उस चीज की वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं दोनों के बीच में. एंड कुछ टाइम पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसको इंडिया का पार्ट डिक्लेयर किया था. बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आई थी. तो इतना ज्यादा Okay. डिटेल में. What is the historical background to this issue? Are you aware of it? No. Ashish, you have any idea? no, sir, historical, I don't know. Whatever you know, please tell me. I just know that both countries claim that island. Okay. Anyone else wants to say anything about Kachatibu? No. Okay. तो ये कच्चादीवू आइलैंड हमारी दोनों कंट्रीज के मैरीटाइम बाउंड्री के पास पड़ता है. ठीक है. What happened in 1974? 1974 में Indian Prime Minister, who was India's Prime Minister? Srimati Indira Gandhi. इंदिरा गांधी. Who was the Prime Minister of Sri Lanka at that time? Anyone? I have asked this question to many candidates in the interviews as well. So, any idea? Shri Mavo Bandaranaike? Spelling may be something else. So, Shri Mavo Bandaranaike and Srimati Indira Gandhi. So they signed a pact. और फिर क्या हुआ उसमें? India gifted this island. India gifted this island to Sri Lanka.
ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, थिंग्स वर नॉर्मल, थिंग्स वर प्रीटी फाइन। पर जो इंडियन इंडियन फिशरमैन थे, इंडियन फिशरमैन एक, अब ये बाउंड्री है फॉर एग्जांपल, अब ये इंडियन पार्ट ऑफ द टेरिटरी है, दिस इज द इंडियन पार्ट ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री, मैरीटाइम रीजन। यहाँ पे आप अपने अपना फिश कैच एग्जॉस्ट कर दिया इंडिया ने, ठीक है, और ये श्रीलंका वाला साइड है। तो इंडिया वाले क्या करते हैं, समटाइम्स इंडियन फिशरमैन दे क्रॉस ओवर टू दी श्रीलंकन साइड, बिकॉज देयर द फिश कैच हैज नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड टू दैट एक्सटेंट। और एक और जो प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, इंडियन फिशरमैन यूज बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है, वो बड़ी बड़ी चेन्स लगाई जाती हैं, वो शिप्स, जो उनकी फिशिंग वेसल्स होती हैं, बड़ी बड़ी चेन्स लगाई जाती है उनके साथ। अगर शिप है तो उसके साथ छोट, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो पूरा नीचे तक उसको लेके जाता है, जहां से वो पूरा वो कैच पकड़ के लाता है। उससे क्या होता है, इकोलॉजी में बहुत नुकसान होता है, इट हैम्पर्स द लोकल इकोलॉजी and it depletes, it is Sri Lankan, they complain about India's interference in their maritime region, and that depletes the Sri Lankan fish catch, it depletes। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि क्या मेजर इशू क्या है। हमने बोल दिया कि हमने गिफ्ट कर दिया, वैसे वो डिसीजन थोड़ा उस टाइम पे सही भी नहीं था, इंडिया ने बहुत बहुत ऐसी गलतियां की है। 1971 में जब हम वॉर जीते, तो हमने वो शिमला एग्रीमेंट साइन कर दी। उससे पहले हमने बहुत कुछ ऐसी चीजें की हैं जो जनरली हम बड़प्पन दिखा देते हैं, बाद में रिग्रेट फिर करने वाली बात हो जाती है। तो उस टाइम पे दैट आइलैंड वाज गिफ्टेड, और अब हम बात कर रहे हैं कि नहीं, वो आइलैंड गिफ्ट नहीं करना चाहिए था। अब जैसे आपने बात की, न्यूज में आया कि श्रीलंका ने, तमिलनाडु वालों ने बोला है कि इंडिया का पार्ट होना चाहिए लक्षद्वीप एंड ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज, ये होता है बिग ब्रदर सिंड्रोम। ये आप अभी बिग ब्रदर सिंड्रोम दिखा रहे हो इंडिया वाले, ये बिग ब्रदर सिंड्रोम नहीं दिखाना। अब आप बड़े बड़े देश हो तो बड़ा बन के रहो, यू हैव टू एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर, नॉट इन अ वे दैट यू डिमीन योर स्मॉलर नेबर्स बट यू हेल्प देम आउट। तो यहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा इस इशू को बड़ा ही एक डेफ्ट मैनेजमेंट की जरूरत थी, डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ दिस क्रिटिकल इशू वाज नीडेड। ठीक है। आई एम श्योर नाउ यू हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट द कच्चातीपू इशू हिस्टोरिकली एज वेल, एंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन। और इसको जो सरकार ने हैंडल भी करना चाहिए, ये बड़ा ही न्यूट्रल तरीके से करना चाहिए। ठीक है। आप श्रीलंका में जाके फिश पकड़ के आओ, लेकिन उनकी सोवरेनिटी को कॉन्कर वो मत करो। अब फिर इंडियन फिशरमैन जाएंगे, वो तो पकड़ेंगे, उनकी जो कोस्टल पुलिस होगी पकड़ेगी आपको, आप उनके पानी में जाओगे तो। वो आपको पता है कंटीगुअस जोन, ईजी एंड दी हाई सीज। अब हाई सीज में जाओगे, अब श्रीलंका के पानी में जाओगे मैरीटाइम बाउंड्री में, दे विल ऑब्वियसली दे विल अरेस्ट यू, दे में शूट यू एज वेल, समटाइम ऐसा होता है, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा एक बैलेंस तरीके से देखने की जरूरत है। ठीक है। क्लियर। ठीक है। नाउ अबाउट आर relations and what is the geostrategic significance of Sri Lanka. You can write in this that Sri Lanka lying on the Indian Ocean trade routes and the SLOCs, critical critical sea lines of communication. SLOCs means sea lines of communication. Sea lines of communication. Lines or lanes, whatever you call it. Sea lines of communication. So Sri Lanka lies on the critical SLOCs and Indian Ocean trade routes, which handles 90% of India's maritime trade. तो हमारा जो maritime trade है इधर से तो जाएगा, है कि नहीं? सही बात है। कहाँ से जाएगा हमारा maritime trade? ठीक है। Making it key to India's Indo-Pacific strategy. So understand this thing. मैंने आपको अभी तक आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी टर्मिनोलॉजी को लेके कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए किसी भी आईआर के क्वेश्चन में, जियो स्ट्रैटेजी। नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, इट शुड बी जियो स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट शुड बी जियो इकोनॉमी। ठीक है। अब इंडिया इंडो पैसिफिक रियल में बहुत सारी चीजें कर रहा है।
इंडो पैसिफिक में हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने एक क्वाड पार्टनरशिप बनाई है विद किस किस कौन कौन सी कंट्रीज है क्वाड में, एनीवन? क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, 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 ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। मालाबार में कौन है? मालाबार में कौन सी कंट्रीज है? मालाबार सर एक्सरसाइज होती है ना? यही है आई थिंक, चारों। कौन सी? इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन मालाबार। यूएस ज्वाइंस एज अ पार्टनर समटाइम्स, उसमें यूएस नहीं, ठीक है। एंड एस सी आर आई क्या है? एनीवन अवेयर ऑफ एस सी आर आई? मैंने पढ़ाया हुआ है पहले आपको, जो ओल्ड स्टूडेंट्स को तो आंसर आना चाहिए इसका। काजल, अंजलि, व्हाट इज एस सी आर आई? आगे दौड़ पीछे छोड़, सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव। अब याद आया क्या है ये? व्हाट इज एस सी आर आई? सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव। तो हमने अभी क्या बात की यहाँ पे कि श्रीलंका इज क्रिटिकल टू इंडियाज मैरीटाइम डोमिनेंस और एज वेल एज इंडियाज मैरीटाइम प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। हमारा जो 90% जो मैरीटाइम ट्रेड है उस पार्ट से जाता है। और दूसरी चीज, हमारी जो इंडो पैसिफिक में अगर हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें श्रीलंकन वाटर या श्रीलंकन इन्फ्लुएंस का काफी ज्यादा एक रोल रहता है। दूसरी चीज, अगर हम अपना जो सप्लाई, हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन का जो हम पार्ट है, आपको अगर थोड़ा सा, अगर आपने इकोनॉमी याद हो आपको, तो हमारी चाइना पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। आर डिपेंडेंस ऑन चाइना किन किन चीजों पे? 80% ऑफ आर एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, 80% ऑफ आर एपीआईज, फार्मा में यूज होता है ना एपीआईज, क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। देन सोलर सोलर पैनल्स के जो बेसिस होते हैं, वो भी हम वहां से बहुत सारी चीजें इस तरह से हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सो दिस इनिशिएटिव, द सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, again this has been developed to counter or to reduce India's dependence on China as far as the global supply chains are concerned। ठीक है? तो अब ये चीजें, आप चीजों को ना एक एक पॉइंट मत समझो, इसको इसको पूरा इकट्ठा दिमाग में पिक्चर बनाओ कि वो पूरा वर्ल्ड मैप सोचो, साउथ साउथ इंडियन ओशन कहाँ से वो क्या हो रहा है, वो पूरे दिमाग में पिक्चर बनाओ। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एस सी आर आई, श्रीलंका का उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट है? क्लियर? ठीक है। नाउ इंडिया इज श्रीलंका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगेन। बहुत सारी कंट्रीज का इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा। 5.5 बिलियन ट्रेड है, इट कीप्स चेंजिंग, डू चेक द लेटेस्ट डेटा बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। ठीक है। इंडिया ने जब डेट क्राइसिस हुआ था श्रीलंका में, तो 400 मिलियन करेंसी स्वैप दिया था कोविड के बाद भी। ठीक है। और 2.2 बिलियन डॉलर हमने इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट। 400 मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया था कोविड के बाद, और हमने दिस थिंग वी आल्सो इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन देम। हमारी हाई लेवल विजिट्स होती रहती हैं। हमारा हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हमारा जो पार्ट है वो अलाइंस विद श्रीलंका इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है। तो ये टर्म्स यूज करनी होती है। आपको लगता है टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है? टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट अलाइंस विद श्रीलंका इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है। बैलेंसिंग चाइनाज प्रेजेंस देयर। ठीक है। कौन कौन सी हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं? मित्रा शक्ति, देन स्लाइनेक्स, दिस इज द नेवल एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, स्लाइनेक्स एंड मित्रा शक्ति। ठीक है। देन मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज विद मालदीव एज वेल। काउंटर टेररिज्म पे हम कोऑपरेट करते हैं, वी कोऑपरेट विद श्रीलंका ऑन काउंटर टेररिज्म, drug trafficking, cyber security, and these are the important things. So, exercises, then cooperating on various aspects of security, which include counterterrorism. Counterterrorism, kaise? Because now, you know, water or sea is also a major area through which terrorists can attack. अब 26/11 बॉम्बे से हुआ,
तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट अटैक बॉम्बे से भी हो सकता है, वो बे ऑफ बंगाल से भी आ सकते हैं। तो ये हमारी कॉपरेशन हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। अब एक और चीज होती है, दिस इज समथिंग ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड और नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। यू नो व्हाट हैपेंस इज, इंडिया के जो नेवल ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन दे गो फॉर देयर एक्सपेडिशंस, तो श्रीलंका में दे टेक देयर स्टॉप ओवर्स। तो पाकिस्तान आर्मी के वहां पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हैं, दे हैव क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग हनी ट्रैपिंग नेटवर्क्स देयर। तो इंडियन सोल्जर्स को दे ट्रैप इन श्रीलंका through through their female trainee officers or whatever of that sort. So that really, for that we need Sri Lankan cooperation for not letting Pakistan sabotage India's officials. So that also has been found in news many times. When talking about culture, हमने पहले भी बात की है, दो चीजें आपने डालनी है। क्या डालना है कल्चर में? आईटेक और आईसीसीआर आपने विदाउट एक्सेप्शन आप डाल दो। नहीं याद आ रहा कुछ? आईटेक ट्रेनिंग एंड आईसीसीआर स्कॉलरशिप्स, ठीक है। बुद्धिस्ट हेरिटेज के ऊपर बात हो रही है, देन विवेकानंदा कल्चरल सेंटर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक। इंडिया ऑल्सो एड्स थ्रू हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर डिस्प्लेस्ड तमिल्स। $4 बिलियन की इमरजेंसी असिस्टेंस दी है 2022 के इकोनॉमिक क्राइसिस में, ठीक है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब श्रीलंका गए थे। री इन्फोर्सिंग इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड द, ये टर्म यूज करनी है, महासागर विजन। ये नोट कर लेना बिल्कुल, जो नोट्स बनाने हैं उसमें यही चीजें लिखनी है, महासागर विजन कैपिटल्स में एंड नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है। प्रधानमंत्री जी को श्रीलंका का ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, मित्र विभूषण, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अफगानिस्तान वालों ने क्या दिया था, भूल याद है किसी को? प्रधानमंत्री उनके उसको क्या नाम था? ये नाम याद रखने हैं आपने आपने कि जिस कंट्री का रिलेशन है, कि भारत के प्रधानमंत्री को ये क्या वो अवार्ड दिया गया या क्या ऑनर दिया गया, ठीक है। एक हमने डिफेंस एमओयू साइन किया फॉर दीज एक्सरसाइजेस, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर यूएई के साथ मिलके हम उनको एनर्जी हब, ट्रिनकॉमली एनर्जी हब पे काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। along with along with UAE and Sri Lanka, we are trying to build up that energy hub in Trincomalee. ठीक है? Then India has converted over $100 billion in loans to grants. तो $100 million हमने जो उनको लोन्स दे रखे थे उनको ग्रांट्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अब आपको देने की जरूरत नहीं है, काइंड ऑफ वी वन टाइम उसको कर दिया, या उसका इंटरेस्ट लो कर दिया, कुछ इस तरह का वो चीजें करी। कल्चरल डिप्लोमेसी में क्या है? relics of Lord Buddha from Gujarat to be sent to Sri Lanka for Vesak Day celebrations, ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी, बोधि ट्री का एक सैपलिंग श्रीलंका में लगाया था, अशोका ने लगाया था, याद है किसी को? अशोका टुक अ सैपलिंग समवेयर इन श्रीलंका, रीड अबाउट दैट, ठीक है। और हम अभी हमारा जो यूपीआई है, ये हम अब हमारा यूपीआई या भीम एक्सचेंज हमने उसके साथ भी किया था, आई थिंक डॉलर रुपी धर्म कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुआ था यूएई के साथ, ठीक है। अभी हमने बाकी कंट्री भूटान के साथ देखा, बांग्लादेश के साथ देखा, आई थिंक लिटिल बिट अफगानिस्तान के साथ भी हम भीम पे और यूपीआई पे काम कर रहे हैं। तो वेरियस कंट्रीज के साथ हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में पाइनियरिंग काम कर रहे हैं। तो यूपीआई इज इंट्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका and authorized Indian rupee as a designated currency 2023 में। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम देख चुके हैं नेवी की और आर्मी की, ठीक। पोजीशन इन द इंडियन ओशन क्रूशियल टू इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स एंड नेवल ऑपरेशंस के लिए, नेवल फ्लीट्स के लिए इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज होती है, आप लोकेशन देखो इसकी, श्रीलंका की आप लोकेशन देखो। अब ये है मैप आपका, इधर श्रीलंका है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी जो नेवल फ्लीट्स आती हैं, अगर वो इधर से आ रही है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका से आ रही है, उनको जाना है कोलकाता, तो एक तो हॉल्ट यहाँ पे ले लेगी, इधर से आएगी, उसको घूम के जाना पड़ेगा विशाखापट्टनम फिर कोलकाता। तो इससे एक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अगर हमारे रिश्ते इनसे अच्छे हैं, तो हम ये इधर से जा सकते हैं, हम काफी अपना फ्यूल और वो चीजें बचा बचा सकते हैं। अब ये आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं ना,
जहां जहां पे रुकेंगे वहां पे फॉरेन एजेंट्स बैठ के इनको ट्रैप करने के लिए बैठे हुए, तो ये चीजें भी समझनी है आपको। ठीक है, कि किस तरह से इंडिया के नेवल ऑपरेशंस के लिए इसकी पोजीशन बोथ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ श्रीलंका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, बायलैटरल ट्रेड। इसका डेटा आप लेटेस्ट चेक कीजिएगा, अभी देख सकते हैं आप व्हाट इज द करंट रेट। कैन यू प्लीज चेक एनी ऑफ यू व्हाट इज द करंट डेटा फॉर इंडिया ट्रेड विद श्रीलंका, बायलैटरल ट्रेड, और किसके फेवर में कितना है। 5.5 billion. सेम है, ठीक है। ठीक है, फाइव Yes. पॉइंट फाइव 5.54 बिलियन डॉलर, ओके। ठीक है, ये पॉइंट्स सेम है। चाइना की हम उसको काउंटर कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मेंबर कंट्रीज ऑफ द सीएससी have recently signed a charter and an MOU to formalize its secretariat at Colombo। तो ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के लिए भी बन गया कि इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में ही होगा। जरूरी नहीं है कि कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग है तो उसका हेडक्वार्टर कोलंबो में ही होगा, जरूरी नहीं, बट इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में ही है, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, इट्स अ रीजनल ग्रुपिंग। इट्स अ रीजनल ग्रुपिंग में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें। भारत है इसमें, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, और सेशेल्स ऑब्जर्वर एज एन ऑब्जर्वर है इसमें। ठीक है, दे आर 5 कंट्रीज प्लस वन ऑब्जर्वर। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सारी इंडियन ओशन वाली होगी ना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स एंड सेशेल्स एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, फोकस क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड डिजास्टर रिलीफ। अब आपको खुद भी दिमाग लगाना है। आप ऐसे सोचो कि जो मैरीटाइम रीजन में थ्रेट्स क्या क्या होते हैं। अब मैरीटाइम रीजन पे अब आपका ये पार्ट है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे कौन कौन से थ्रेट्स आएंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या क्या थ्रेट्स हैं। एक तो पायरेसी थ्रेट सबसे बड़ा, पायरेसी अटैक्स। देन यू हैव काउंटर टेरर इश्यूज, टेरर रिलेटेड इश्यूज। देन इकोनॉमिक हाईजैक हो सकता है। ठीक है, देन ड्यूरिंग इन द इवेंट ऑफ वॉर, मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे आप काउंटर करोगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ वॉर। और क्या चीजें आ जाएंगी इसमें आपका, ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, और क्या चीजें, थिंक ऑफ अदर पॉइंट्स, और क्या दिमाग में आता है आपके, कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, द थ्रेट्स एंड द चैलेंजेस इन द मैरीटाइम डोमेन। नेवल वॉरशिप्स ऑफ द एनिमी। अब फॉर एग्जांपल सिक्स फ्लीट थी शायद, वो यूएस की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1971 वॉर में, जब अमेरिका ने अपनी सिक्स्थ फ्लीट आई थिंक थी वो भेज दी थी, एंड देन आई थिंक रशिया केम इन एंड उसने जब एंटर किया तो तब वो न्यूट्रलाइज हुआ। सो आप मैरीटाइम डोमिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इधर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट आपका यहाँ पे है, तो मलक्का स्ट्रेट में इंडिया की डोमिनेंस बहुत जरूरी है। मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्राई सर्विसेज कमांड भी है, ट्राई सर्विसेज कमांड। This is very close to Malacca Strait. So this is how we are also trying to forge relations with countries in the Far East, in the ग्वादर पोर्ट, फिर आपका यूएई के साथ। तो हम रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर कंट्रीज के साथ। और यहाँ पे सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, दे मूव अक्रॉस दिस मलक्का स्ट्रेट। अराउंड 5 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड यहाँ से पास होता है एनुअली। अभी शायद डेटा बढ़ भी गया होगा, तो इट्स मोर देन 5 ट्रिलियन डॉलर, सो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये 2011 में आपका सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एस्टैब्लिश हुआ था एज अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये प्रीलिम्स का एक और सवाल आपका बन गया कि जो
कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग है। ओरिजिनली कितने मेंबर्स थे इसमें? सो ओरिजिनली 3 ही थे, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। बाद में ऐड हो गए आपके बांग्लादेश, मॉरिशस एंड सेशेल्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है। अब इश्यूज क्या है हमारे रिश्तों में? सबसे पहला तो तमिल इशू है, ये आपको पता है कि जो तमिल्स के साथ सिटीजनशिप को लेके और राइट्स को लेके काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती रही है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट तमिल्स इन सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। ठीक है। वीकनिंग ऑफ द 13 अमेंडमेंट, आई टोल्ड यू अबाउट द 13 अमेंडमेंट अर्लियर इटसेल्फ। उसकी कुछ प्रोविजंस के नॉन इम्प्लीमेंटेशन, तो उसकी वजह से लोगों में, तमिल्स के बीच में ग्रीवेंसेस होते हैं। और भारत के जो तमिल्स हैं, ऑब्वियसली उनको आपस में प्रॉक्सी, आप दिल में थोड़ा सा उनको दर्द होगा अपने तमिलियन ब्रदर्स के लिए। ठीक है ना? तो वो इंडियन गवर्नमेंट को बोलेंगे कि उनको थोड़ा सा राइट्स के लिए उनके काम कीजिए। दूसरा, चाइनाज 99 ईयर लीज ऑफ हम्बनतोता पोर्ट, ये एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। सारे पोर्ट्स को चाइना कॉन्कर एक्वायर कर रहा है। ठीक है। और चाइना की सबमरीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है इस एरिया में। ठीक है। वो हमारे लिए बड़ा एक कंसर्न है। इंडिया स्टॉल रोल इन मटाला एयरपोर्ट, इंडिया ने वहां पे काम कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, ये भी एक इशू है। फिशरमैन इशू जो मैंने आपको पहले बता दिया, कच्चा टीबू वाला, ये सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है। इंडियन फिशरमैन फेस अरेस्ट एंटरिंग श्रीलंकन वाटर, ऑब्वियसली करेंगे अरेस्ट, वो क्यों अलाउ करेंगे? दो अलाउड टू रेस्ट ऑन कच्चा टीबू, ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, जॉइंट वर्किंग ग्रुप एंड एएमयू एमओयूज आर वर्किंग ऑन द रेजोल्यूशन। तो इसमें हमें थोड़ा सा एक बैलेंस तरीके से चलना है। अब ट्रेड इम्बैलेंस क्या है? इंडिया एंजॉयज ट्रेड सरप्लस, तो ऑब्वियसली इट्स इन फेवर ऑफ इंडिया। हमारे इतने हम एक्सपोर्ट करते थे और सिर्फ इतना श्रीलंका से हम इतना इंपोर्ट करते थे, तो ऑब्वियसली इंडिया के फेवर में रहेगा। इन इंडिया, तमिलनाडु heavily influences Sri Lankan policy, as I told you earlier, कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिसी टुवर्ड्स श्रीलंका will be majorly defined by, it is defined by, it should not be, should it be? What do you think? What do you guys think? Should our foreign policy be defined by domestic interests or India's larger strategic interests? What do you think, Sunidhi? Should domestic considerations be allowed to influence our larger foreign policy? No, sir. Explain to me, no? Just I don't want to know just know an answer. Explain how, why, and how. Uh, sir, आराम because से बोलो. as Nobody is judging you. Just feel free to express. Try to open your mind. so as we have seen in other bordering nations also that India has always tried to use his big brother policy, and that has affected many things. So if Mm-hmm. we'll interfere in their domestic, so So, see, anyone else wants to pitch in with some assessment? Rahul? So, according to me, in order to meet our short-term domestic needs, India must not compromise with long-term strategic goals, which can harm our security and integrity in near future. Mm-hmm. Good point. Rahul, I want to hear from you. Try to say whatever you can think of. Here we're trying to learn. I have always been emphasizing on one thing because you have joined now. For those students who have been with us for last 6 to 8 months, the only thing that is most important is आप इंटरव्यू की तैयारी मेंस के रिजल्ट के बाद नहीं शुरू करते हो। आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो चुकी है शुरू जब आप छोटे बच्चे थे, स्कूल में आपकी एडमिशन होती तब से। तो एवरीथिंग दैट यू डू, द वे यू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, वट एवर यू डू इन योर अलोन टाइम, दैट इज शेपिंग योर पर्सनैलिटी। और हमें लगता है कि हम वहाँ 10 आधे घंटे में ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे और उन लोगों को विल ट्राई टू मे बी इम्प्रेस देम। ऐसा नहीं होता है, because the people who are interviewing you, they're roughly in the age of 60 to 65, 70, in that age group. And these people have experienced more than twice our age, isn't it? वो आप एंटर करते हो क्लास इंटरव्यू रूम में, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपके बैठने को देख के, आप पहला वर्ड अटर करते हो, वहीं पे आपके नंबर डिसाइड हो जाते हैं। आपके 30 मिनट जो 30 मिनट बैठ के बात करते हो तब नंबर डिसाइड नहीं हो जाते आपके।
आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट हो जाती है एज लॉन्ग एज यू एंटर द इंटरव्यू हॉल। वो आधा घंटा उस असेसमेंट को कंफर्म करने के लिए लगता है कि वेदर व्हाट हैव वी असेस्ड अबाउट दिस कैंडिडेट इज दैट करेक्ट, और देन दे ट्राई टू पोर ओवर योर माइंड। What I try to advise is try to take active participation in whatever is happening in the class also, because हम तो यहाँ we are having a very cordial discussion, है ना। यहाँ पे you try to open up one step gradually so that there you will not feel intimidated. Actually you should not feel intimidated. All those people are, consider them as your, you know, as your grandfather or something like that, कि आप अपने ग्रैंडफादर से कैसे बात करते हो, फॉर्मली बात करते हो, इनफॉर्मली करते हो, लेकिन रिस्पेक्टफुल होके बात करते हो। ठीक है, वो आपने डेवलप करना है, वो डिक्शन, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लियर थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, वो आपने ग्रेजुअली डेवलप करनी है। ये नहीं सोच छोड़ना है कि यार मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा, नहीं, अभी से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। हाँ, तो अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? I'm not जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यू से व्हाट एवर यू फील। कुछ नहीं। नहीं आ रहा है दिमाग में? आप इंडिया श्रीलंका रिलेशन को कुछ भी दो लाइंस में समराइज कीजिए मेरे लिए। इफ आई वांट टू एक्सप्लेन टू मी थ्री की पॉइंट्स अबाउट इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, हमने तो अभी क्लास में पढ़ लिया, 3 पॉइंट बताइए मुझे। सर एक तो जैसे हमारा जो इंग्लिश में इंडिया बात, से कोशिश करेंगे हम इंग्लिश इंग्लिश में बताएं। चलिए कोई नहीं, आज आप, कोई नहीं, आप आज हिंदी में बताएं, इंग्लिश में नेक्स्ट क्लास के लिए आप कोशिश करें, हिंदी में बताएं, कोई बात नहीं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन है उसको हमारा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इससे अगर हमारा अगर सही नहीं होता है तो काफी थ्रेट है, जैसे आपने हम्म। बताया अभी हमें। हम्म। लाइक हमें अगर, क्योंकि अदर कंट्रीज श्रीलंका को अगर सपोर्ट करती हैं तो उसमें इंडिया के लिए तो काफी ज्यादा चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ेंगी। हम्म। लाइक अभी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हमें प्रॉब्लम होगा, ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी प्रॉब्लम होगी हमें, ऐसे काफी प्रॉब्लम होगी हमें। ठीक है, ठीक है, फेयर ना, फेयर ना। आशीष? हाँ सर, क्या बताना है? मैं वो क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन रिमेन्स, शुड डोमेस्टिक कंसर्न्स shape our long-term foreign policy? I think, sir, national interests are more prioritized over the domestic ones. Mm-hmm. नेशनल इंडिया को नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रखने चाहिए डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उस Mm. इसके लिए श्रीलंका के जो रिलेशन, श्रीलंका के साथ जो रिलेशंस है वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर रखने चाहिए। तो हमें जो अपने डोमेस्टिक लॉबी को कैसे कन्विंस करना चाहिए? हाउ शुड वी बैलेंस आवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स विद रिस्पेक्ट टू आवर फॉरेन पॉलिसी एंड एंड you know tensions that may escalate from time to time on the domestic front? How shall we balance that? आई थिंक सर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसको परस्यू करना चाहिए कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अ, इन चीज़ों से ऊपर है। Hmm. जो आप फेस कर रहे हैं वो इसके ऊपर है, और जो जो कंट्री फेस करेगी आने वाले लॉन्ग टर्म विजन है उस Mm-hmm. वो ज्यादा उसको चैलेंजेस ज्यादा फेस होंगे आई थिंक। Right, right, right. ठीक है, सो मूविंग ऑन, द रीसेंट क्राइसिस में भारत का क्या रोल रहा है उसको थोड़ा सा देखेंगे एंड देन विल राइट अ फ्यू पॉइंट्स। तो ये तो हमें पता है कि हमने पहले ये पॉइंट देख चुके हैं, 2500 साल का हमारा इतिहास है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है हमने इनको, $4 बिलियन इमरजेंसी एड दी थी। आपको पता है श्रीलंका में जो क्राइसिस हुए थे, है ना, बीओपी क्राइसिस एंड ऑल ऑफ दैट, और $1 बिलियन क्रेडिट लाइन दी है एसेंशियल आइटम्स के लिए। फिर हमने एनर्जी सिक्योरिटी सपोर्ट दी है श्रीलंका को, वी प्रोवाइडेड एनर्जी सिक्योरिटी सपोर्ट एज वेल।
400 metric tons of diesel and petrol, and $500 million credit line to prevent a total fuel collapse. So these are these help we gave them. Currency swap agreement भी हुई थी, ठीक है। जब IMF ने भी बेल आउट किया, हमने भी उनकी मदद की। $400 million करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। एंड इंडिया एंडोर्स, जब IMF के जो रिलीफ पैकेज था, इंडिया ने भी उसको एंडोर्स किया, सपोर्ट किया, और हमने मेडिकल एड भेजी, बहुत सारी चीज़ें। इंडिया लॉबीड एट IMF, G20 एंड वर्ल्ड बैंक, इंश्योरिंग फास्टर इंटरनेशनल एड। सो हमने ओवरऑल श्रीलंका की काफ़ी मदद की, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं, वो आप लिख लीजिए। आई विल मेक यू राइट अ फ्यू पॉइंट्स एज वेल, क्या क्या हमने उनकी मदद की है। एक तो हमारा बुद्धिस्ट हेरिटेज है, कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज है, दैट यू अंडरस्टैंड, है ना। वी हैव अ कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज। अच्छा, हमने उनकी एक लिख लीजिए, वी हैव एन FTA विद श्रीलंका, वी हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका सिंस 2000, ठीक है। 60% of श्रीलंकन एक्सपोर्ट्स 60% of श्रीलंकन एक्सपोर्ट्स enjoy FTA benefits of free trade agreement. 60% of Sri Lankan exports enjoy benefits of फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया का एनुअल FDI जो रहा है श्रीलंका में इन द पीरियड ऑफ 2015 to 19, that remained around $1.7 billion, which is one of the highest, ठीक है। Along with that, our bilateral merchandise trade has been around $3.6 billion. Merchandise trade, $3.6 billion. अब असिस्टेंट जो हमने उसको दी, उसमें हमने एक हम्बन तोता में 150 bedded Dikoya hospital we have helped built in Hambantota. Dikoya hospital in Hambantota, ठीक है। There is another housing project as well, India housing project in Sri Lanka, in the war torn area, the war impacted area, for 50,000 houses. We kind of helped in that as well, ठीक है। इसके अलावा there has been support for the Trincomalee oil tank farm. Trincomalee oil tank farm. Renewable energy investments have also been made there. Renewable energy, S&T Corporation in wastewater science and technology, wastewater technology में इसमें हमने कॉपरेट किया है। बिग डेटा, बायोटेक्नोलॉजी, these are the points of convergence, as well as सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी हमने इनके साथ कॉपरेट, वी आर शेयरिंग आवर एक्सपर्टीज एज वेल, ठीक है। अब जो श्रीलंकन क्राइसिस था, you can write a few points about that just to have an idea. It was majorly due to number one, depletion of the forex reserves, depletion of the forex reserves, and default on foreign debt, default on foreign debt। ये अराउंड $51 बिलियन हो गया था।
इसकी वजह से क्राइसिस ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है। दूसरा, इनका ओवर डिपेंडेंस हो गया था इंपोर्ट्स फॉर इवन एसेंशियल्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स फॉर बेयर एसेंशियल्स इवन। फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स, पल्सेस, इसके लिए भी इनको इंपोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ा था। देन इनका टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी ना टूरिज्म पे काफी डिपेंडेंट है, सो देयर वाज अ ग्रेट डिक्लाइन इन टूरिज्म सेक्टर। एक तो किसकी वजह से, कोविड। कोविड से तो ऑब्वियसली इनका हिट हुआ, क्योंकि इनके ज्यादा टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ा था। क्या इम्पैक्ट पड़ा था? 4 बिलियन डॉलर से, $4 बिलियन से इट केम टू जस्ट अबाउट 500 million. That was a big hit. Tourism sector took a big hit. थर्ड लार्जेस्ट फॉरेक्स अर्नर है इनका, जो फॉरेक्स So रिजर्व्स there हैं was श्रीलंका के। also a Easter bomb blast there. सॉरी। ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हुआ था। हाँ, यस यस, बहुत सारी चीजें थी। तो ये इनका जो टूरिज्म सेक्टर है, ये इनका फॉरेक्स में थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टूरिज्म में। तो ये एक मेजर एक शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से द क्राइसिस वर इमेंस। ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर क्राइसिस क्या हुआ था? एग्री सेक्टर, एग्रीकल्चर क्राइसिस में इन 2020 इन्होंने बैन लगा दिया था ऑन फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड शिफ्टेड टू ऑर्गेनिक। अब ये ऑल ऑफ अ सडन caused a great shock in the economic system. So that was a another challenge. उस टाइम पे और क्या सिचुएशन थी? यूक्रेन वॉर भी थी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। इन्फ्लेशन वेंट अप। आपको पता है जो कैस्पियन सी, ब्लैक सी वाला जो एरिया है, तो यूक्रेन और रशिया में से बहुत ज्यादा वीट एक्सपोर्ट होता है। तो उसकी वजह से क्या था, वीट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था। फिर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लेके आए वो बहुत सारी। इजिप्ट की अगर आप बात करोगे, तो इजिप्ट हैज वहाँ पे वीट का बहुत वो कंजम्पशन होता है। तो इंडिया ने उस टाइम पे 61,500 टन्स ऑफ वीट एक्सपोर्ट किया था इजिप्ट को, बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल। तो ये सारी चीजें ओवरऑल इट काइंड ऑफ इम्पैक्टेड द श्रीलंकन, बहुत सारी चीजें हो गई। एक तो यूक्रेन वॉर हो गई, उससे इन्फ्लेशन बढ़ गई, इनका टूरिज्म सेक्टर हिट हो गया, कोविड आ गया, और सारी चीजें जो बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। और इस तरह से बहुत सारी ये चीजें हुई जिसका उनका पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम सिस्टम इनका खत्म हो गया। और इनका जो एफडीआई था, एफडीआई विच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ देयर ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम, $1.6 बिलियन से 550 मिलियन पे आ गया। $1.6 बिलियन in 2018 to around 550 million in 2020. So this was a big hit. So हर तरह से they were kind of sidelined, and their currency also weakened currency 2022 में it depreciated 50% versus dollar and 31.5% versus rupee. इंडिया और पाकिस्तान रुपी का एक्सचेंज रेट क्या है, किसी को पता है? 1 रुपी इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी पाकिस्तान रुपी? आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग कुछ था। जो आप पेट्रोल इंडिया में 100 रुपये आपको लीटर मिलता है, वहां पे 350 400 का मिलता है। सोच लो वहां पे क्या हालत है लोगों की। एग्जैक्ट चेक कीजिएगा क्या है, 3 पॉइंट सब कितना है, 3.5 है कुछ ऐसे था।
यू कैन चेक इट। इंडियन एंड पाकिस्तान रुपी का एक्सचेंज रेट क्या है? थ्री इंडिया ने पॉइंट कैसे 3 पॉइंट 3.1। 3.3 वही 100 रुपए की चीज वहां पे 400 में मिलेगी। अब देख लो क्या हालत है, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। दिस इज अभी इंडिया में ही आप देखो इन्फ्लेशन इतनी हाई है, इट्स एवरीथिंग कमोडिटीज आर रियली कॉस्टली। आप आटा दाल चावल जो नॉर्मल कमोडिटीज हैं एसेंशियल्स, वो भी पाकिस्तान में फिर दे आर वेरी कॉस्टली। इंडिया ने कैसे हेल्प किया था श्रीलंका का? सबसे पहले एसेंशियल मेडिसिन पे लिख लीजिए, एसेंशियल मेडिसिन प्लस हेल्प इन बूस्टिंग इट्स ओन फार्मा प्रोडक्शन एज वेल। एसेंशियल मेडिसिन के साथ साथ उसकी जो फार्मा प्रोडक्शन को भी बूस्ट करने में इंडिया की मदद की, बिकॉज इंडिया फार्मा सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट हेल्प शेयर इट्स एक्सपर्टीज देयर एज वेल। Credit lines plus currency swap that we've written already. Credit lines plus currency swap. Then it became an opportunity. It became India's opportunity to counter China's string of pearls. It became India's opportunity to counter China's string of pearls. Then free floating dock facility. Then एक हमारा जो reconnaissance aircraft है, Dornier reconnaissance aircraft that we did share our assistance with Sri Lanka on that. Then जैसे मैंने पहले बात की, we gave financial assurances to IMF also कि आप श्रीलंका की मदद करें, उनको जो क्रेडिट लाइन है वो जो लोन देना है वो दीजिए। एंड हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HICDP, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HICDP, that was also kind of helping in the Sri Lankan reconstruction. So these are the few things that you can add on to the points that we earlier mentioned. Because when we talk about Sri Lanka, it is important to understand the crisis also that happened. So you can write a few points, उसको summarize करके। आप जरूरी नहीं आप श्रीलंका का आंसर आएगा तो उसमें पूरा लिखेंगे, आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं दोनों पॉइंट्स ऐड करके। व्हाट आर द इश्यूज, उसमें एक पैराग्राफ में आप 2 से 3 लाइन में आप बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से श्रीलंकन क्राइसिस आया, और उसके बाद आप इंडिया के असिस्टेंस के भी 2 दिन आप पॉइंट्स उसमें बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर ऑन दिस? एनी डाउट्स? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अभी। तो ये कीवर्ड्स जो उसने मेंशन किए हैं वो हमने बात कर ली है इस बारे में। अब थोड़ा सा आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है आप कोशिश कीजिए हमेशा। आप कितनी हुई? मायूरी प्लीज म्यूट योर फोन। हाँ, so you have to just keep it like that. Start with जियो strategy, जियो इकोनॉमी, देन उसमें आप ट्रेड में ले आइए, सिक्योरिटी में ले आइए, फिर ह्यूमैनिटेरियन एड ले आइए। कल्चर कल्चर टूरिज्म वाले पॉइंट्स को थोड़ा बाद में लाना। ठीक है, कल्चर टूरिज्म एजुकेशन पॉइंट्स की ना इंपॉर्टेंस मैटर करती है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि आपको टॉपिक्स की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप जियो स्ट्रैटेजी, जियो इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ये पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद इकोनॉमी पे आ जाइए, फिर उसके बाद ट्रेड और इकोनॉमी एक ही साथ में मेंशन कर सकते हैं। देन यू टॉक अबाउट कल्चर टूरिज्म एजुकेशन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, उस कॉन्टेक्स्ट में आप वैसे आप बिल्डअप कीजिए। और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको भी मेंशन करना है। कोई प्रधानमंत्री की विजिट होती है, अब जैसे एग्जाम देने के विद इन 1 और 2 मंथ्स विजिट होती है तो विजिट का मेंशन कीजिए। फॉरेन मिनिस्टर की विजिट होती है उनके या हमारे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर की विजिट का आप मेंशन करना है। कोई समिट होती है जैसे सार्क की समिट होती है या बिम्स्टेक की होती है, या कोई और इंटरनेशनल फोरम पे हम
कुछ बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट कंट्री, इन दिस केस श्रीलंका, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, नो डाउट्स इन दिस, आई होप दिस मेथड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग ओनली। तो इसको आप सारी चीज को अब 2-3 घंटा बैठ के थोड़ा रिसर्च, हल्का फुल्का आधा पौना घंटा बैठ के रिसर्च कर लीजिए। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं आपको, लेटेस्ट कुछ मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा, वो ऐड कीजिए और अपने नोट्स में इसको कंपाइल कर लीजिए 1 A4 शीट में। ठीक है, हाँ जी बताइए, आप किसी को डाउट है तो। नो डाउट्स। सुनीति, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं अपनी ऐसे की? Yes, sir. करो करो, उसको अच्छे से लो, और रिवीजन भी जो करनी है उसको कंसिस्टेंटली कीप इट गोइंग। ठीक है, चलिए फिर, इफ यू हैव नो डाउट्स विल रैप अप द क्लास, विल सी यू टुमारो। ठीक है, probably on the same time. Have a good day. Don't keep the backlog piling up. Try to wind it up as quickly as possible. Okay? चलिए फिर, all the best. Good day. थैंक यू सर। Okay, थैंक यू thank you सर। everyone. थैंक यू सर।